स्टूडेंट्स, एस्केलेटरी सिस्टम्स हम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर एस्केलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था। टुडे वी विल स्टार्ट टॉपिक किडनी। किडनी is an important part of human body because without kidney do not compare excretory system. Kidney is mostly role play in excretion process. So guys, I will today we will start topic kidney. Kidney mainly role play of excretion. Human beings के तो जा फटाफट हंसी क्यों आ रही तुम? आगे में ना जाना। जल्दी कर, 1 मिनट की खराब हो गई। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे विल बी स्टार्ट किडनी। प्रीवियस लेक्चर डिस्कशन टॉपिक excretory system of human. Kidney is a most important organ in human body. Kidney mainly purify and completely excretory process of human body. Kidney in human, kidney are main excretory organ. All human beings, animals, excretory system complete a process for the kidney. So guys, today will we start kidney. Kidney a most important excretory organ in human beings. तो guys, आज हम किडनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। किडनी क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है excretory ह्यूमंस के अंदर। किडनी जो है इन ह्यूमन, 1 pair of kidney are found. In human 1 pair of kidney are found. Mainly kidney purify all substance and urine, urea, uric acid, salt, etc. etc. Kidney in human 1 pair. Kidney situated in human, so which are situated at dorsal side of abdominal cavity. Guys, listen be carefully, read and write. First, in human 1 pair of kidney are found. Or kidney is a most importantly main excretory organ in human. Second, which are situated, it means kidney are situated at dorsal side of abdominal cavity. Dorsal side of abdominal cavity and both the side of vertebral column. Guys, see this vertebral column, it means backbone. Both sides kidney are present. So hip, bottom, upper bottom and dorsal abdominal cavity on both the side of vertebral column. Vertebral column के both sides में kidney present होता है. Next, the right kidney is same what anterior to the left kidney. जो right kidney होती है left kidney से थोड़ा upper side में होता है anterior portion की तरफ. Next, both kidney यानी दोनों किडनियां, both kidney are attached. Right kidney and left kidney, both kidneys are attached. Both kidneys are attached with the dorsal wall. With the dorsal wall of abdominal by means of a fold of membranous thin peritoneum. It means both kidneys covered and attached dorsal wall abdominal. यानी कि दोनों किडनी एक
कवरिंग से कवर्ड रहती हैं और वो कवर्ड जो थिन लेयर है पेरिटोनियम वो अटैच रहती है एब्डोमिनल वॉल से या डोर्सल वॉल एब्डोमिनल। गाइस रिपीट अगेन, बोथ किडनीज कवर्ड thin peritoneum and peritoneum attached abdominal cavity. Next, kidney are formed from the embryonal mesoderm। क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होता है कि किडनी का फॉर्म कहाँ से होता है। तो नॉर्मली गाइस किडनी आर फॉर्म फ्रॉम द embryonal mesoderm and These are of the मेटेनफेरिक types। और ये किस टाइप्स की होती है? मेटेनफेरिक टाइप्स की होती है। किडनी नॉर्मली फॉर्म होगी एम्ब्रियोनल मेसोडर्म से एंड दिस टाइप ऑफ किडनी मेटेनफेरिक टाइप्स। नेक्स्ट, ह्यूमन किडनीज आर डार्क रेड एंड बीन शेप्ड। ह्यूमंस में जो किडनी होती है, ह्यूमन बीइंग्स में जो किडनी है वो डार्क रेड कलर की होंगी एंड बीन शेप्ड होंगी। Next, the outer surface of the kidney, किडनी का outer surface जो है is concave, वो concave lens के जैसा होता है and the inner surface of convex। ध्यान देना कि the outer surface of the kidney is convex and the inner surface of concave। जो किडनी का outer surface है वो कॉन्वेक्स लेंस टाइप का होता है एंड जो इनर सरफेस जो होती है किडनी का वो कॉनकेव टाइप का होता है। द इनर सरफेस ऑफ कॉनकेव पिट लाइक स्ट्रक्चर ऑन द कॉनकेव साइड्स। जो इनर सरफेस है किडनी का कॉनकेव उसमें पिट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। उन पिट लाइक स्ट्रक्चर्स को हाइलम कहा जाता है। रिपीट अगेन कि किडनी का आउटर सरफेस होगा वो कॉन्वेक्स टाइप्स का होगा एंड इनर सरफेस जो होगा वो कॉनकेव टाइप्स का होगा और इनर सरफेस में पिट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं वो हाइलम कहलाती हैं। आर कॉल्ड हाइलम। ध्यान देना कि पिट लाइक स्ट्रक्चर ऑन द कॉनकेव साइड इज कॉल्ड हाइलम। नेक्स्ट किडनी में हम बात करते हैं कि रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन्स। ध्यान देगा, रीनल आर्टरी एंड रीनल नर्व्स एंटर किडनी फ्रॉम द हाइलम साइड। किडनीज के अंदर, बोथ किडनीज के अंदर जो रीनल आर्टरी है एंड नर्व्स जो हैं वो एंटर करेंगी हाइलम साइड से। नेक्स्ट, रीनल वेन, लिम्फ डक्ट एंड यूरेटर कम्स आउट ऑफ द किडनी। और किडनी से कौन बाहर निकलेंगे? रीनल वेन बाहर निकलेगा एंड लिम्फ डक्ट और यूरेटर्स। गाइस यूटरस जो है वो किडनी से 3 टाइम लॉन्ग होता है। किडनी का लेंथ 10 to 11 सेंटीमीटर और यूरेटर का जो लेंथ है अबाउट 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो गाइस रिपीट अगेन कि रीनल वेन, लिम्फ डक्ट एंड यूरेटर कम आउट ऑफ द किडनी। किडनी से कौन कौन निकल रहा है? ये है यूरेटर, रीनल वेन एंड लिम्फ डक्ट। नेक्स्ट, a cap like structure, both kidneys you see now have a cap like structure। guys next point है कि a cap like structure endocrine gland, adrenal gland covers the upper end of the kidney। किडनी के एंटीरियर पार्ट पे, बोथ किडनीज के एंटीरियर पार्ट पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एड्रेनल ग्लैंड होती है। वो एड्रेनल ग्लैंड से बोथ किडनीज जो हैं एंटीरियर पार्ट में कवर्ड रहती हैं, वो एड्रेनल ग्लैंड है। तो रिपीट कर रहा हूं कि एक कैप लाइक स्ट्रक्चर एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन भी होती है या इसे एड्रेनल भी कहते हैं, कवर्स द अपर एंड ऑफ द किडनी। किडनी के अपर पार्ट के अंदर, एंटीरियर पार्ट के अंदर एड्रेनल ग्लैंड से एक कैप लाइक स्ट्रक्चर में कवर्ड रहती हैं। नेक्स्ट है कि नेफ्रॉन आर मेक, नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन आर मेक 1 करोड़ 30 लाख माइक्रोट्यूबुल्स। 1 नेफ्रॉन जो है वो डेवलप होता है 1 करोड़ 30 लाख माइक्रोट्यूबुल से। नेक्स्ट, बोथ किडनीज के अंदर अबाउट 2 lakhs नेफ्रॉन प्रेजेंट। 1 kidney 10 lakhs and both kidneys 20 lakhs नेफ्रॉन प्रेजेंट और 1 नेफ्रॉन make a
1,30,00,000 microtubules and kidney की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है और बोथ किडनीज में अबाउट 20 लाख नेफ्रॉन में प्रेजेंट. सो गाइस कि one nephron are make 1,30,00,000 microtubules. Guys, you see this diagram. So right kidney and left kidney. This is a ureter and urethra. तो गाइस ध्यान रखना कि बोथ किडनीज जो हैं, बोथ किडनीज में अबाउट 20 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. किडनीज की अपर कवरिंग सरफेस जो है वो कोर्टेक्स होती है एंड इनर सरफेस जहां प्राइमरी अटैच्ड होती हैं वो मेडुला पार्ट होता है. आउटर पार्ट इसका होगा कोर्टेक्स, मिडल पार्ट होगा मेडुला. बोथ किडनीज में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं. इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं किडनीज के अंदर. ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं आकार पिरामिड. ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो होंगी पिरामिड्स एंड इनके अंदर जो ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं ये होती हैं रिनल कॉलमस ऑफ बर्टनी. कुछ इस तरीके से होंगी, ये एक दूसरे से अटैच. तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिखाई दे रही हैं ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होंगी? रिनल कॉलमस ऑफ बर्टनी. एंड ये पिरामिड्स आपको सीन यहाँ पर हो रहे हैं, ये पिरामिड्स हैं. मेडुला पिरामिड्स ही होंगी. नेक्स्ट यहाँ पर हमने रिनल वेन्स को शो किया है, यहाँ पर हमने रिनल आर्टरी को शो किया हुआ है. अपर पार्ट पर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है बोथ किडनीज पर जो इसको एंटीरियर पार्ट पर कवर करती हैं एक कैप लाइक स्ट्रक्चर में, ये एड्रिनल ग्लैंड है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो किडनी से प्यूरिफिकेशन के बाद में जो यूरिन पास होके यूरेथ्रा में आता है. मैंने अभी आपसे बात कहा कि यूरेटर अबाउट 3 टाइम लॉन्ग किडनी, तो यूरेटर्स अबाउट 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड यूरेथ्रा ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये यूरेथ्रा है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. इस यूरेथ्रा में अबाउट 700 ml टू 800 ml यूरिन स्टोर हो सकता है. यूरेथ्रा के पोस्टीरियर पार्ट पर 2 वॉल्स होते हैं. एक होगा अपर इन्वेंटर वॉल जो स्मूथ मसल से बना होगा. ध्यान रखना ये है अपर इन्वेंटर वॉल जो यूरेथ्रा में क्वांटिटी बढ़ने पर या इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होने पर ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है. एंड सेकंड वॉल है लोअर वॉल्वेंचर वॉल, ये भी प्रेशर के साथ में ओपन होता है और यूरिन को पास कर दिया जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूरिन में कंटेंट क्या क्या होंगे. तो यूरिन में जो अबाउट है अबाउट H2O 95%, यूरिया 2.7%, यूरिक एसिड 0.3% एंड साल्ट 2% प्रेजेंट होते हैं यूरिन के अंदर. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो किडनी है वो 3 लेयर से कवर्ड रहती है या किडनी में 3 पार्ट्स होते हैं. ये आउटर पार्ट, इनर और ये इनर मास. तो गाइस ध्यान रखना आउटर मास लेयर रिनल कैप्सूल कहलाती है. ध्यान रखना मैंने अभी आपसे कहा कि जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं तो किडनी में 3 लेयर्स होती हैं या यूं कहें कि 3 लेयर से किडनी कवर्ड रहती है. किडनी की ये जो लेयर है ये है रिनल कैप्सूल. ये आउटर मास लेयर जो है ये है रिनल कैप्सूल जो कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होगी और इसमें व्हाइट फाइबर से ये डेवलप होती है या यूं कहें कि व्हाइट फाइबर से ये डेवलप होती है और कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई होगी जिसे कहेंगे रिनल कैप्सूल. नेक्स्ट ब्लू वाली ये लेयर जो है इसे एडिपोज लेयर कहते हैं. ये एडिपोज लेयर जो है फ्लैट टिश्यूज से डेवलप होती है. फर्स्ट हमने आउटर देखी जिसे रिनल कैप्सूल कहा, सेकंड हमने एडिपोज कैप्सूल देखा, थर्ड ये वाली ये जो लेयर है थर्ड ये रिनल फोसिया कहलाती है जो कनेक्टिव टिश्यू से डेवलप होती है. तो गाइस आज हमने नॉर्मली किडनी के बारे में डिस्कशन किया है कि किडनी
कि फंक्शन क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने नॉर्मली किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया है।